پاک فوج میں اہم تبادلے اور تقرریاں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DG/ISI مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ کراچی کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف نے نئی تقرریوں پر مشاورت کی۔ عمران خان نے سبکدوش ہونے والے ISI چیف کی ملک کے لیے خدمات کو سراہا۔ عثمان خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاک فوج میں سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی منظوری سے اہم تقرریاں اور تبادلے۔ DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نئے ISI چیف تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالا، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات۔ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاک فوج کا ایڈجوٹنٹ جنرل بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی بیٹھک، کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں، نئی تقرریوں اور تبادلوں پر بریف کیا۔ وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بطور سبکدوش DG/ISI الوداعی ملاقات بھی کی۔ عمران خان نے ملک کے لیے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے نئی پوسٹنگ پر نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ISI کے نئے چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم روایتی اور غیر روایتی خطرات کے ماحول میں کمانڈ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران بطور IGFC بلوچستان خدمات انجام دی۔ کرکٹ اور باسکٹ بال کے اچھے کھلاڑی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ISI کا عہدہ سنبھالنے والے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عسکری میدان میں بے مثال صلاحیتوں کے حامل۔ پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن لیا۔ کنگز کالج لندن اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشنل اسائنمنٹس کا وسیع تجربہ بھی نئے DG/ISI کے عسکری کیریئر کا حصہ۔ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے ماحول، مغربی سرحد اور LOC پر کمانڈ اور بلوچستان میں طویل عرصہ خدمات انجام دے چکے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران IGFC بلوچستان تھے۔ جنوبی وزیرستان، کرم ایجنسی اور ہنگو میں انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ نئے DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم PMA سٹاف کالج اور NDU میں انسٹرکٹر کے فرائض بھی انجام دے چکے۔ سٹاف کالج کوئٹہ میں بطور کمانڈنٹ کراچی کور کے چیف آف سٹاف کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ ڈائریکٹر جنرل ISI کا عہدہ ملنے سے قبل کور کمانڈر کراچی کے منصب پر کام کر رہے تھے۔ DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم دوڑ، باسکٹ بال اور کرکٹ کے بھی بے حد شوقین ہیں۔ DG/ISI کی پوسٹ کا کراچی سے گہرا تعلق ہے۔ نئے سربراہ سمیت 3 سربراہان اہم ترین عہدہ سنبھالنے سے پہلے کور کمانڈر کراچی رہے۔ نئے DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اس سے پہلے کور کمانڈر کراچی کے عہدے پر فائز تھے۔ گزشتہ 9 برس میں 5 میں سے 3 DG/ISI ایسے رہے جو کراچی یا سندھ میں تعینات تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے 11 دسمبر 2016 سے 25 اکتوبر 2018 تک DG/ISI کا منصب سنبھالا۔ اس سے پہلے وہ کور کمانڈر کراچی تعینات تھے۔ ان سے قبل DG/ISI بننے والے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر DG رینجر سندھ کے عہدے پر فائز تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے بھی ISI کی کمان سنبھالنے سے پہلے کور کمانڈر کراچی کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائیں۔ دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI چیف بننے سے پہلے GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، جبکہ ان سے قبل سید عاصم منیر احمد شاہ DG/ISI کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے DG ملٹری انٹیلیجنس کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے ملکی اداروں پر سنگین الزامات لگا دیے۔ کہا پیناما کا شور مچا کر منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ کیس پولیٹیکل انجینئرڈ ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی سمیت حاضر سروس جنرل کو بلا کر پوچھا جائے۔ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا اور اس امپائر کا نام ہے جنرل فیض حمید۔ میرا کیس پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے۔ شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے۔ سٹنگ جج شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ اس وقت کے DGC ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ وہ 2
साल की मेहनत क्या थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको जीआईटी के सामने पेश किया जाए। वो जीआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है। जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तब्दील नहीं हो सकती। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है। गॉडफादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा। एलिगेशन इररिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियाँ कौम के सामने हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। मरियम नवाज सियासत चमकाने के लिए इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं। लीगी नायब सदर के बयान पर हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद ने कहा, इदारे सलामती के ज़ामिन हैं, इल्ज़ामात लगाने वाले इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। शहबाज गिल कहते हैं, शरीफ ख़ानदान खुद पूरी की पूरी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। फ़ारूक हबीब ने भी खूब लत्ते लिए। पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा और ये पछताएंगे, और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। मरियम नवाज के इल्जामात पर हुकूमती अरकान का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, लीगी नायब सदर सियासत के लिए इदारों को निशाना बना रही हैं। एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं, लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया में उनकी सलाहियतों को और उनकी कारकर्दगी को तस्लीम किया जाता है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना था, जालसाजी और साजिशें नून लीग का वतीरा हैं। जिसके ऊपर भी आप इंजीनियर्ड करने का इल्जाम लगाते हैं, क्या उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? किसी ने आपके बारे में कुछ इंजीनियर्ड नहीं किया। असल में आप लोग खुद एक पूरी की पूरी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं। आपके वालिद को इंजीनियर्ड किया गया था 80s की दहाई में। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब कहते हैं, इदारों पर इल्जामात लगाकर मरियम सफदर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मुहिम की सरबराह बन गई हैं। इदारों पर तनकीद करने वाली मरियम नवाज ने अपनी पार्टी पर भी वार कर दिया। सवाल किया गया, क्या पिटीशन पर शहबाज शरीफ और पार्टी साथ है? तो बोली, ये मेरी और नवाज शरीफ की जंग है, पार्टी को बीच में ना लाए। मरियम नवाज ने एक्सटेंशन को भी गुनाह करार देकर नून लीग के फैसले से इख्तिलाफ किया था, यानी अपनी ही जमात पर हमला किया था। शहबाज शरीफ साहब कौन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर? ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। मरियम नवाज का अपनी ही पार्टी पर एक और अटैक। सजा के खिलाफ पिटीशन को अपनी और नवाज शरीफ की जाती जंग करार दिया। नून लीग को बीच में ना लाने का कह दिया। ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले पार्टी इजलास में मुफाहिमत का बयानिया रखने वालों को डरपोक भी करार दिया था। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की हिमायत को गुनाह करार दिया और पार्टी फैसले से लाताल्लुकी जाहिर की। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। हमजा शहबाज ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद की थी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। पार्टी में धड़े बंदी की तरदीदें और फिर ऐसे बयानात, साफ पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त ही कहा था। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। फैयाजुल हसन चौहान की हैट्रिक, तफसीलात कुछ ही देर बाद। नए चेयरमैन नैब की तकर्री तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सीट पक्की हो गई। सदर मुमलिकत ने दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुकम्मल होने पर 4 साल की एक्सटेंशन दी जा सकेगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तकर्री करेंगे। इत्तफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी देखेगी।
अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सदारती तौसीक पर दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 नाफिज। मुद्दत खत्म होने पर भी चेयरमैन नैब की ओहदे पर बरकरार रहने की राह हमवार। नए नैब चीफ की तैनाती तक काम जारी रखने की इजाजत दे दी गई। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन को मुद्दत मुकम्मल होने पर 4 साल के लिए दोबारा भी तैनात किया जा सकेगा। तरीकाकार नई तकर्रुरी जैसा होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तकर्रुरी करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में अदम इत्तफाक पर मामला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी देखेगी। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा, जबकि चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। मुस्लिम लीग नून नैब ऑर्डिनेंस को अदालत समेत हर फोरम पर चैलेंज करेगी। लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ ने नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान दे दिया। कहा, यह नहीं हो सकता कि हुकूमत ने 3 साल में जो मज़े लूटे उनका हिसाब न लिया जाए। नून लीग इस कानून को लेकर सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्या करेगी? ऑर्डिनेंस बिल्कुल इसको हम चैलेंज करेंगे, हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वजह यह है कि आप ये नहीं हो सकता कि जो आपने गुल खिलाए हैं, जो मौजें लूटी हैं 3 साल, और उसके बाद आप हिसाब न दें। आप मुबर्रा नहीं हैं। वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर इख्तिलाफ़ात को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके और फवाद चौधरी के बयानिए में कोई तजाद नहीं। फवाद चौधरी बोले, चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत हो सकती है, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से नहीं। अच्छा, हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानिए में। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शायद आप थोड़ा सा देर से आए, अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी सदर साहब जो हैं वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़रूक नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करें। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। पोजीशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। क्योंकि देखिए, ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। टैक्स के मामलात अब नैब के दायरे कार में नहीं आएंगे। वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत अवामी ओहदा ना रखने वाले अफराद के उमूर भी नैब नहीं देखेगा। ब्यूरोक्रेसी के मामलात जहाँ बदनीयती शामिल ना हों उन पर भी नैब हाथ नहीं डालेगा। एहतसाब अदालतों के जजेस की तैनाती मुतालिका हाई कोर्ट की मुशावरत से होगी। जो सारा का सारा टैक्सेशन का मामला है, वो सारा का सारा FBR को ही रीडाइवर्ट किया जाए। इससे केस नहीं ख़त्म होंगे, इससे सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। अगर कोई प्राइवेट इंसान होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है तो नैब का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो एक टैक्स पेयर्स का और एक जनरली स्पीकिंग प्राइवेट पर्सनस को कम्प्लीटली नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया है। किसी ने प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं ब्यूरोक्रेसी ने, और उसमें कोई किसी ने पैसे नहीं कमाए, गलत पैसे नहीं कमाए, रिश्वतें नहीं दी, कोई एसेट नहीं बनाया, साथ साथ कोई किसी ने ऐसी ओपिनियन दी है, एडवाइस दी है, बाद में अगर वो गलत भी साबित हो जाए लेकिन उसकी बदनीयती नहीं है, तो उसको भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाला जा रहा है। उसके अलावा जजेस की तकर्रुरी में कोई भी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, वो क्वालिफाई करेगा नैब का जज बनने के लिए, और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्टेशन की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के साथ। तहरीक इंसाफ लाहौर के ओहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, 3 साल में पहली मुलाकात हुई है, कंटोनमेंट इलेक्शन में हार से सबक सीखें, मुलाजमतों में वर्कर्स का ख्याल रखें। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। PTI लाहौर के ओहदेदारान के उस्मान बुज़दार से गिले शिकवे। 5 अक्टूबर को वज़ीर आला पंजाब से होने वाली मुलाकात में ओहदेदारों ने कहा कि बिलाहर आज 3 साल बाद आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो ही गया।
ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों ने कहा कि हमें कंटोनमेंट इंतखाबात में शिकस्त से सबक सीख कर कारकुनों को अहमियत देनी चाहिए, तरक्याती कामों पर मशावरत करें और छोटे ग्रेड की सरकारी मुलाजमतों में वर्कर्स का ख्याल रखें। चंद ओहदेदारों ने वजीर आला को कहा कि महंगाई का कुछ करें, इससे लोग बहुत परेशान हैं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लाहौर के एक मकामी पार्टी लीडर ने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी बहुत है, इससे नुकसानात हो रहे हैं। पार्टी ओहदेदारान की शिकायत सुनकर वजीर आला ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि आपसे मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक दीगर अमूर के लिए वजीर आला ने एक अफसर मुकर्रर किया है जो पार्टी ओहदेदारों से राबते में रहेगा। इस मुलाकात में लाहौर से PTI के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। नेम शरबाट, समा, लाहौर। और अब खबर यह कि फयाजुल हसन चौहान की विकेट गिरने की हैट्रिक हो गई। फयाज चौहान पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी से आउट हुए और इस बार भी उन्हें खबर न हुई। उनकी जगह हसन खावर को तर्जुमान लगा दिया गया। फयाज चौहान बगैर बताए बार बार हटाने पर नाराज नजर आए। उन्होंने क्या मशवरा दिया, इस रिपोर्ट में जानिए। उस्मान बुज़दार की टीम के फयाज चौहान पंजाब हुकूमत की पिच पर दौड़े जा रहे थे, इससे बेखबर कि वो आउट हो चुके हैं। मुझे तो नहीं पता जानना कि क्या हो। पिछली दफा मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पे। नवंबर 2020 में विजारत इत्तलात पंजाब से हटाया, तब भी चौहान ला इल्म थे। मुझे नहीं पता इसका क्या कहना चाहेंगे। मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। पहली बार 5 मार्च 2019 को विजारत इत्तलात से हटाया गया था और अब उनकी विकेट गिरने की हैट्रिक हो चुकी है। कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। अच्छा काम नहीं कर रहा था, मुझे हटा दिया गया। अब जो नए आए हैं इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से तर्जुमानी का हक अदा करेंगे। उनकी जगह हसन खावर ने काम संभाला है, मगर बार बार बगैर बताए पवेलियन भेजने पर फयाज नाला हैं। एतमाद में लेना चाहिए इसमें ना, जब भी आपने कोई शेफलिंग करनी है या आपने कोई जिम्मेदारी किसी की लगानी है, उसको किसी और जगह लगाना है, तो अच्छा ये होता है कि आप कंसल्ट करें, बताएं। मुझे तो नहीं पता जानना, मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है। तीसरी बार हटाए जाने पर भी फयाज CM को तरीका सिखा रहे हैं, मगर बुज़दार क्या चाहते हैं ये शायद नहीं जान पा रहे। उस्मान बुज़दार को क्या चाहिए, आप 3 सालों में क्या समझे? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान में सियासी डेडलॉक बरकरार, जाम कमाल मुख्तलिफ अरकान -1 के मुतालबे पर डट गए हैं। वज़ीर आला ने भी इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के मैदान सियासत में हलचल जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुखालिफ अरकान की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की मोहलत ख़त्म हो गई। जाम कमाल भी डट गए और एक बार फिर वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। जाम मुखालिफ अरकान भी आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। कहते हैं जाम कमाल की कश्ती में सुराख हो गया है, अब तो उन्हें जाना ही होगा। जाम को कल जो हमने अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने थ्रू मीडिया जवाब दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसके लिए हमने ज़हन बनाया, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जाम के खिलाफ लेके आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती वफ़द ने एक बार फिर नाराज अरकान को मनाने की कोशिश की। सूबाई वज़ीर अब्दुल खालिक कहते हैं नाराज दोस्तों को मनाने के लिए आए हैं, उम्मीद है जमी बर्फ पिघल जाएगी। जो कमजोरियां है, जो खामियां है, जो खदशात है, जो ग्रीवेंसेस है, उसे जो है उसी टेबल पे हल करे। नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए मज़ीद 24 घंटे की मोहलत दे दी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने चीन से महंगे और खुफिया कर्जे लेने का तासुर मुस्तरद किया। कहते हैं चीन से तवानाई मंसूबों के लिए सिर्फ 4.25% शरह सूद पर कर्जे लिए। मईशत को चीनी कर्जों से कोई खतरा नहीं। सीपैक जो है उसके ऊपर दुनिया की नज़र रहती है और बहुत सारी दुनिया में कुव्वतें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि ये कामयाब भी ना हो। खबरें फैलाई जाती हैं जिससे जो है वो मायूसी फैले। अमेरिका का एक कोई थिंक टैंक है, उन्होंने ये रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि कोई खुफिया कर्जे हैं इस सीपैक के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाल दिए गए हैं। पहली बात तो हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर का हिस्सा हैं और तमाम ये जो इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। पता नहीं कौन से खुफिया कर्जे की बात कर रहे थे हमने।
پاکستان کا مجموعی جو اس وقت قرضہ ہے اس کا 10% چین سے ہے. اگر میں صرف بیرونی کر لوں پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو ہے تو اس کا 26% جو ہے وہ چین سے بنتا ہے. تو وہ جو 74% ہے جو پیسہ ہم نے باقی دنیا سے لیا اس 74% سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہوا, اس 26% سے خطرہ ہو گیا. بالکل لغو آرگومنٹ ہے. ٹی پیک پہ اس حکومت کے آنے کے بعد زیادہ کام ہوا ہے. دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ معاشی تعلقات رکھے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہوگا کہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں اس کو بائیلیٹرل تو ہے ہی ہماری راہداری, اس کو ایکسٹینڈ کر کے ایک ریجنل کوریڈور بنایا جائے. نواز شریف کے بعد ان کی مرحوم اہلیہ کلثوم نواز کی کرونا ویکسین کا جعلی اندراج کر دیا گیا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے شناختی کارڈ پر بھی جعلی انٹری کا انکشاف ہوا ہے. مرحومہ کلثوم نواز کی انٹری میل سی اور اسحاق ڈار کی انٹری ملتان سے کی گئی. محکمہ صحت پنجاب کے سسٹم میں جعلی انٹری کی تصدیق ہو گئی ہے. سی ای او ہیلتھ نے گزشتہ روز جعلی انٹری کی تردید کی تھی. خبروں میں آگے دیکھیے وائٹ کرولا گینگ کی انٹری. ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا عمر شریف کروڑوں مداحوں کو سوگوار کر گیا. عمر شریف کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. ہر دل عزیز شخصیت کو الوداع کہنے کے لیے پرستاروں کا سیلاب امڑ آیا. الوداع عمر شریف الوداع. فی البدیہہ مزاح کا عہد اختتام کو پہنچا. جسد خاکی گلشن اقبال میں واقع رہائش گاہ سے باہر آیا تو ہزاروں مداح اور ساتھی فنکار اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر کر کاندھا لگانے کے لیے موجود تھے. میت کو نماز جنازہ کے لیے کلفٹن تک لایا گیا تو میت کے ساتھ ایک ہجوم عاشقاں رواں دواں تھا. کلفٹن میں عمر شریف کے نام سے منسوب پارک میں نماز جنازہ کے لیے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا بشیر فاروقی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر. گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، خرم شیر زمان، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت سیاستدانوں اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. شوبز ستاروں اور پرستاروں کا جم غفیر اپنے محبوب لیجنڈ کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. صحیح معنوں میں جس نے ملک کی نمائندگی کی وہ آج ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا. سب سے پہلے پاکستان کا عملی مظاہرہ میری زندگی میں عمر شریف سے زیادہ اچھا کسی اور نے نہیں کیا. لیجنڈ کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دلوں میں زندہ رہتا ہے. عمر بھائی ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. دل بڑا اداس ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ جتنا آپ لوگوں کو عمر بھائی نے زندگی میں ہنسایا ہے تو اب آپ کی باری ہے. آپ ان کے لیے اتنا پڑھیں کہ ان کی اگلا جو سفر ہے اس میں وہ خوش رہیں. اپنی زندگی دکھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے وقف کرنے والا لازوال فنکار اب نیند سو گیا. عمر شریف کو ان کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرامین اور ساتھی رپورٹر خورشید عالم، سعد صابری کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی. لاہور سے خبر، جہاں فیصلے کی نقل ملنے میں معمولی تاخیر پر وکیل آپے سے باہر ہو گیا. ڈنڈا اٹھا کر کاپی برانچ کے شیشے توڑ ڈالے. وکیل کو گرفتار کر لیا گیا. ارشد علی رپورٹ کر رہے ہیں. کالے کوٹ کے کالے کرتوت. مقامی وکیل ماجد جہانگیر نے معمولی بات پر ڈنڈا اٹھا لیا، کاپی برانچ کے شیشے توڑ ڈالے. سب لوگ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہو گئے. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے مطابق توڑ پھوڑ کرنے والے وکیل کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے گزشتہ روز ہی وکلا کو ڈنڈا سوٹا اٹھانے کی بجائے قلم اٹھانے پر زور دیا، لیکن وکیل صفائی نے ان کی نصیحت سنی انسنی کر دی. ہم جو وکلا صرف اور صرف قلم کا استعمال کرتے تھے، ہم نے ڈنڈا سوٹا اٹھا لیا. لاہور ہائی کورٹ کے ترجمان کے مطابق وکیل کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. کیمرامین خابر محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور. کراچی میں چھالیا کی اسمگلنگ اور مخبر کے قتل کا واقعہ.
माफिया से पर्दा उठने लगा है। मजीद बात होगी। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद रहमान खान, आपकी स्टोरी थी, अब पर्दा उठने लगा है, क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, सीसीटीवी हुक्काम की जानिब से अब इस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जिसमें ये चीजें सामने आई हैं कि छालिया माफिया यौमिया 40 लाख रुपए से जायद की रिश्वत मुख्तलिफ इदारों और पुलिस को जो है वो दे रहा है। ट्रकों और डंपर्स के खुफिया खानों में तकरीबन 24 टन छालिया रोजाना एक ट्रक या डंपर में जो है वो लाई जाती है। इसी तरह बसों के खानों में, खुफिया खानों में भी जो है वो छालिया की स्मगलिंग जो है वो की जाती है। खास तौर पर इनकी इस्तिलाह भी जो है वो अलग है, ये एक अलग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। छालिया जब बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल की जा रही होती है तो लगड़ी नाम का एक किरदार होता है जो कि ट्रक के आगे मोटरसाइकिल पर चलता है। वो जब ये देखता है कि अगर कोई रास्ता क्लियर नहीं है, वहां पे कोई नाका लगा हुआ है, तो वो लगड़ी जो है वो उस ट्रक को रोक देता है और उसको कच्चे के इलाके में जो है वो ले जाता है। तो इस माफिया ये इतना मुनज्जम अंदाज में काम करता है कि इन्होंने अपने इस्तिलाहात बनाई हुई हैं, अपने कोड वर्ड्स बनाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद। डेरा गाजी खान में सैलाबी पानी में डूबकर 3 बहन भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। आपको बताएं कि अहले इलाका ने अपनी मदद आप बच्चों की लाशें सैलाबी पानी से निकाली। तमाम बच्चों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। मरने वालों में 2 भाई, 1 बहन और 2 कज़न्स शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस देकर कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। सक्खर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स के बजाय स्वीपर लाशों का पोस्टमार्टम करने लगा। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि खुर्शीद शाह तुम क्या चाहते हो कि सक्खर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे? मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया, इन सबसे क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊँ। खुर्शीद शाह का सक्खर यूरोप से भी 2 कदम आगे निकल गया, जहां स्वीपर सर्जन बन गया। ये वीडियो सिविल अस्पताल सक्खर की है, जहां स्वीपर दिलावर को मर्दों और खवातीन की मैयतों का पोस्टमार्टम करते देखा जा सकता है। दिलावर का कहना है कि उससे जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाए जाते हैं। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। रिलीफ 2-3 दफा मैंने मना किया है कि सर मेरी तबीयत खराब होती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा काम सफाई का है, आप मेरे से सफाई कराएं। अगर स्वीपर पोस्टमार्टम करेगा तो कानूनी तकाजे शफाफ तरीके से कैसे पूरे किए जा सकते हैं? समा की टीम AMS डॉक्टर अल्ताफ अमान के दफ्तर पहुंची तो उन्होंने मौकिफ देने से इनकार कर दिया, दफ्तर छोड़कर चल दिए। सिविल अस्पताल सक्खर की ये हालत सिंध हुकूमत की सेहत के शोबे में कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा सक्खर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।